Good morning students, I am Mahipal. Today we will discuss economic chapter money and credit. Money and credit. Here students, money and credit. In olden time, man was in olden time as a hunter, and firstly man was hunter, then he practicing agriculture, and whatever the required was produce of gathered by him. सच एज स्टूडेंट्स हेयर स्टूडेंट्स वाई शुड बी स्टडी अबाउट मनी, यानी हमें मनी की अब जो स्टडी थी वो क्यों करनी पड़ी, क्यों चाहिए. ऑल ऑफ वांट्स अ गुड इनकम इन आवर फ्यूचर विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी गुड इनकम. एनी पर्सन वांट टू गुड इनकम फॉर आवर फ्यूचर्स और ऑल्सो प्रेजेंट्स हाउ स्पेंड मनी एंड लैंड बोरो सेव डिनोट्स. Studying about money and credit, saving, investment, expenditure, and learning of any those topic we learn in next different phases of evolution of money, definition, features, significance of money, various modern forms of money, banks and its basic functions, credit terms, another role, self-help group, cooperatives. And students, how did money involve? You know very well students, in olden time primitive age means early man, any early age, it means stone age. People need were limited, and in that time people were very limited. Need of peoples were very limited because in that time people collect everything like food to eat for kill animals and fruits and skin of animal to bear and plants leaf. So there was no need of exchange and money, and that time no need of money. So that's an emergence of exchange. Emergence means होता है राइज होना, किसी चीज़ का आगे बढ़ना, किसी चीज़ का उभर के आना सामने, यानी ज़रूरत होना. तो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी स्लोली ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी लोगों को जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों को नॉलेज बढ़ रही थी और वो उनका डेवलपमेंट हो रहा था. तो वहाँ पर क्या था कि दे स्टार्टेड, यानी पीपल हु वर एक्सपर्ट द प्रोड्यूसिंग सम गुड्स, यानी दैट टाइम पीपल्स प्रोड्यूसिंग सम गुड्स एंड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग अदर गुड्स. For example, a person making stone tools gives the tools to the hunter and gets the meat against the tools. Here students, I am telling next new example such as any person have, I am telling just like one person have tools and other person have meat. So any one person have tools, one person have meat. सो स्टूडेंट्स दे वांट टू चेंज ईच अदर. एक को खाने के लिए मीट चाहिए, दूसरे को टूल्स चाहिए. दूसरे पे टूल्स नहीं है, एक पे मीट नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उसके पास मीट इतना था कि वो उस मीट से टूल्स खरीद सकता था. तो उसने क्या किया, उसने मीट्स दिया दूसरे को और उससे टूल्स लिए, यानी इट इज अ चेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी. सच एज इन प्रेजेंट टाइम आई एम टेलिंग मैं बता रहा हूँ कि सच एज एग्जाम्पल कि किसी के पास राइस है, अब उसे वीट की आवश्यकता है, यानी हैव नीडेड वीट. सो वह क्या करेगा, वह ऐसे व्यक्ति को देखेगा जिसे वीट की ज़रूरत नहीं है, यानी वो राइस से वीट चेंज करता हो. तो वो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, यानी दोनों की जो नीडेड थिंग्स हैं, जो नीड हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी. यानी एक ने वीट से राइस चेंज किया, दूसरे ने राइस से वीट चेंज किया. और इट इज सिस्टम कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. It is called system the barter system. Here students, you are looking the picture. Both are grains, यानी apples and food grains, and grains यानी अनाज. The system of direct exchange in which the system of direct exchange commodities means things. Exchange for some other commodities, it means some other commodities and some other things without using any medium of exchange. यानी it means people change only things
those have needed, that is called the barter system. Next students, here is main features of barter, and it is the oldest exchange system. Goods or services are exchanged, यानी only और only goods are and services, यानी services work only exchange. Okay, there was no common measures of value, यानी वहाँ पर कोई भी इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी. नो मनी और अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज यूज, यानी वहाँ उस टाइम कोई मनी नहीं थी और कोई भी वहाँ पर एक्सचेंज यूज नहीं था. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एसेंशियल बार्टर सिस्टम. डबल कोइंसिडेंट स्टूडेंट्स, यानी डबल कोइंसिडेंस कहलाता है कि इट मीन्स बोथ पार्टीज. डबल, लिसन केयरफुली, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, इट मीन्स बोथ पार्टीज, यानी दोज आर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज. बायर एंड द सेलर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी. यानी यहाँ पर वर्ड से वही कहलाता है कि डबल कोइंसिडेंस, कि कोई भी दो पार्टियाँ, बायर और सेलर यानी खरीदार और विक्रेता, एग्री हों सेल एंड बाय यानी बेचने को और खरीदने को, ईच अदर्स कम्युनिटी यानी एक दूसरे की अपने अपने सामान को, यही क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम, यानी वो डबल कोइंसिडेंस कहलाता है. एडवांटेज ऑफ बार्टर स्टूडेंट्स, हियर इज एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम. इट इज़ द डायरेक्ट एक्सचेंज फ्रॉम डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम, देयरफॉर नीड्स कुड बी सेटिस्फाई इमीडिएटली, यानी हमें जिसकी तुरंत जरूरत होती है हम उसको चेंज कर लेते हैं. नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड, यानी कोई भी मीडियम एक्सचेंज नहीं है. लो ट्रांजैक्शन टाइम टू रिक्वायर विच हेल्प द पीपल अवॉइड रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम, यानी रिस्क ऑफ, यानी इसके एडवांटेज है लो ट्रांजैक्शन, यानी बहुत ज़्यादा टाइम, जो थोड़ा सा है थोड़े से चेंज कर लो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे आपके पास टाइम है. सो लिमिटेशन ऑफ बार्टर, नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बांड्स, यानी यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस की यानी दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है. यहाँ पर लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, यानी लैक मीन्स होता है लेस यानी कमी, जो स्टैंडर्ड होता है उसकी कमी होती है यहाँ पर. प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारी डिसेबिलिटी होती हैं, डिविसिलिटी होती हैं. प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, यानी लोग प्रॉब्लम के पास जो स्टोर होता है उसको स्टोर नहीं कर पाते, जो थिंग्स होती हैं ज़्यादा मात्रा में होती हैं उसको स्टोर नहीं कर पाते. प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू, यानी तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करें, ट्रांसफ़र नहीं कर पाते. यानी पेमेंट वाज नॉट पॉसिबल, पेमेंट वाज यहाँ पर जो पेमेंट है वो नहीं हो पाएगा आपको, और ओनली यू कैन चेंज ओनली थिंग्स. नेक्स्ट इज नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. प्रॉब्लम ऑफ रामनिवास स्टोरी, ही इज अ पॉटर मेक्स पॉट्स, यानी ही इज अ पॉटर मेक्स पॉट्स एंड वांटेड टू एक्सचेंज हिज पॉट्स फॉर सम क्लॉथ्स, यानी वह अपने पॉट्स के बदले कुछ कपड़े चेंज करना चाहता था. ही विजिट ऑल नियर बाय क्लॉथ मार्केट मेकर्स बट नन ऑफ देम रेडी टू गिव द क्लॉथ इन एक्सचेंज ऑफ हिज पॉट्स. दे वांट समथिंग डिफरेंट अगेंस्ट देयर क्लॉथ, यानी दे वांट समथिंग डिफरेंट अगेंस्ट देयर क्लॉथ, यानी उसके अगेंस्ट जो क्लॉथ वो देना चाह रहे थे, बट कोई भी उसको क्लॉथ उसके जो पॉट्स थे वो चेंज करने के लिए नहीं था. तो इट इज़ अ डबल कॉन्सिडेंट प्रॉब्लम, यानी प्रैक्टिस बार्टर देयर मस्ट बी डबल कॉन्सिडेंट वांट्स, यानी तो यहाँ जो प्रैक्टिस है वो डबल कॉन्सिडेंट एंड इट इज अ प्रॉब्लम. सो सेंड कम्युनिटी ऑफ मनी, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ मनी, कम्युनिटी मनी, यानी जो ओल्डन टाइम में जो मनी थी वो कम्युनिटी मनी थी, यानी थिंग से थिंग को चेंज करना. यूजफुल मनी थी, यानी डिमांड ऑफ यूज एंड एक्सचेंज मीडियम जो थी उसकी बोथ मीन्स पेमेंट एंड अ मेजर वैल्यू, यानी ओल्डन टाइम में ओनली कम्युनिटी चेंज. यानी एग्जाम्पल सच एज आई टोल्ड कि वेरियस कम्युनिटी हैव हिस्टोरिकल सर्व, जैसे कैटल, टोबैको, शुगर, ग्रेन्स, यानी बट द ट्रांजेक्शन इज स्टिल इसेंशियल अ बार्टर ट्रेड, वन गुड फॉर सर्विस फॉर अदर गुड. यानी अब यहाँ पर क्या होता कि मैनी स्टूडेंट्स वो मैनी पर्सनस कम्युनिटी यूज द, जैसे ओपन द डेयरी सिस्टम, यानी डेयरी उन्होंने ओपन कर ली और उस डेयरी से ही अपनी अर्निंग करते थे, उसी से अपने जो मिल्क प्रोडक्ट किया उससे ही चेंज करते थे. इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, इन प्रेजेंट टाइम यानी किसी के पास ओनियन है तो उसने ओनियन से कर लिया, डिफरेंट टाइम एनिमल्स है तो उनसे कर लिया. यानी लिमिटेशंस ऑफ कम्युनिटी मनी, यानी लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, सेम
transferring different, same I told few seconds before. Next students, metallic money. You know metallic money, यानी metals जैसे gold, silver, metallic money have common utility, were started using as medium of exchange in olden time. metallic money यानी gold से gold को change कर देते. We are the king system in India olden time, such as ancient time. Next stand, way of modern coins, starting adding symbol to express value, यानी मॉडर्न जो मनी थी लोग उस पर अपना सिंबल बना देते एंड गिव उसको वैल्यू को स्टैंडर्ड दे देते. सच एज मॉडर्न मनी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्डाइज यानी उसको मनी को उसको स्टैंडर्ड कर दिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड देर आर टू टाइप्स मनी and pay to modern coins. You are looking the modern coins money, you are looking old precious metal were replaced with the less costly metals, यानी पहले जो precious metal होता था उसको चेंज करके न्यू मेटल बनाया है स्टूडेंट्स. न्यू मनी यानी अनाज से अनाज चेंज करना, एनिमल्स से किसी दूसरी जितनी जो थिंग्स हैं उसको चेंज करना, यानी जो डिफरेंट पेमेंट है डिफरेंट करना. जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई व्यक्ति है अगर वो बुक सेलर है और उसके पास वो शॉपकीपर है और बुक्स बेचता है, तो वो बुक्स अर्निंग जो बुक्स बेचेगा उससे अर्न करके जो भी पैसा उससे अर्न होगा ही परचेज द न्यू थिंग्स, परचेज द ही ओन नीड थिंग्स. सच एज मनी कैन बी एनीथिंग, हैज परचेजिंग पावर, यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज एंड डिफरेंट यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफ फ्यूचर यूज. यानी हम क्या करते हैं कि मनी को अपने यूज करते हैं अपनी जो नीड थिंग्स होती हैं एंड बी स्टोर फॉर फ्यूचर. फंक्शन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी हम जैसे इन प्रेजेंट टाइम इफ़ वी परचेज फ्रूट्स देन वी गिव मनी. इफ इट मीन्स एनीथिंग वी परचेज दैट यू हैव मनी, पेपर करेंसी एंड कॉइन करेंसी, वी कैन and we change the money and fruits. Store in value, yani we store in present time, we store your money at home and also bank. Mainly function of money, mainly we store money in banks. Function of money yani measures of value, यानी हम उस वैल्यू से भी परचेज हाउस देन भी गिव्स रुपीज़, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ होम, यानी हम मकान को खरीदते हैं मकान को बनवाते हैं तो उससे पैसे हम तो मेजर ऑफ वैल्यू, हम उससे अपनी वैल्यू को मेजर करते हैं, गणना करते हैं उसको. नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी हम जो मनी होती है ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो मनी ऑफ ट्रांसफ़र है. स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, यानी डिफरेंट टाइप पेमेंट्स, जैसे लोन होता है अप्रूव करते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, यानी लोन अप्रूव्ड. फंक्शन ऑफ मनी स्टूडेंट, हियर इज मनी इन इंडिया. स्टूडेंट्स लिसन, coins and paper currency of, it means पैसे and rupees, here money यानी exchange और money in India. Paper currency notes such as rupees 1 rupee or 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees. In Reserve Bank is permission of Finance Ministry. Student in have 1 rupees, the secretary office signed by the rupees, but other rupees 2, 5, 10, 20 signed by the Reserve Bank of India. And 1 rupees it's subsidized the issued of the Ministry of Finance. It issued coins and 1 and 50 paise. Next, other names of modern money, symbolic and token money. In olden time students, as the currency, notes and coins have no or very less intrinsic value but represent the higher value, therefore they are called the token money. यानी as currency, notes and coins have no or very less intrinsic value, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कम है तो इट इज द टोकन वैल्यू. नेक्स्ट, हाई प्रूव्ड मनी, यानी करेंसी नोट्स एंड coins are called high powered money. हाई पावर्ड यानी हायर लेवल, बिकॉज दे रिप्रेजेंट हायर वैल्यू, यानी जो एक्चुअल वैल्यू यानी इसकी एक्चुअल जो वैल्यू शो करते हैं वो हाई प्रूव्ड वैल्यू मनी कहलाते हैं. यानी लीगल टेंडर मनी, द रुपी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी.
यानी जिनके पास क्या होते हैं कि रुपीज़ नोट्स जो होते हैं और कॉइन्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। सच एज स्टूडेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हु डील्स विद मनी एंड क्रेडिट एज इट्स रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी जो बैंक होती हैं वो हमें पैसे हमारे जमा करती हैं और हमें देती हैं। हमारी जो नीड थिंग्स होती हैं, हम बैंक से बी टेक लोन फ्रॉम द बैंक for our needed and deposit, and we can deposit your money. It accepted deposits from the depositors and grant loans to the needy borrowers। यानी जो needy borrowers होते हैं, जो उधारी लेते हैं, वो बैंक से ले सकते हैं। तो बैंक क्या करती है, लोग पैसे जमा करते हैं, दूसरों को देती है, दूसरे जमा करते हैं, किसी और दे देती है। तो ये क्या है, बैंक का अपना एक सिस्टम है। तो हियर स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ बैंक, जैसे जो बैंक है कि डिपॉजिट होते हैं, फंक्शंस होते हैं। देखिए आई एम टेलिंग द स्टूडेंट्स डिपॉजिटर जैसे सच एज मनी एज अ डिपॉजिट विद बैंक, यानी जो मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, यानी उन्हें जब दिन ब दिन निश्चित जरूरत होती है तो वो करेंसी को लेते हैं। एंड द रेस्ट टू डिपॉजिट द इन द बैंक ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, यानी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, यानी बैंक से पैसे निकालते हैं और बैंक में डिपॉजिट भी करते हैं। तो हियर स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। ग्रांटिंग लोन्स, लोन को ग्रांट कराते हैं इफ़ हैव नीड फॉर लोन्स। प्रोवाइडिंग सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए सेफ्टी भी होती है। जैसे इन ओल्ड टाइम कि जब पैसा घर में रहता था तो बहुत सारे जो थेफ्ट यानी चोरियाँ होती थी इन लोग घर में, तो अब वो चोरियाँ दूर हो गई। यानी फंक्शन एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर कस्टमर, मेकिंग पेमेंट इन बिहाफ ऑफ कस्टमर, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी इंश्योरिंग बिल, एनीथिंग वी कैन इन डिपॉजिट बैंक। मेन फंक्शन ऑफ द बैंक, डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स। थैंक्स स्टूडेंट, बी